پاکستان میں بسنے والے اور پاکستان سے باہر جہاں بھی میرے پاکستانی مسیحی بہن بھائی بستے ہیں ان سب کو کرسچن لاجیشین کی طرف سے شالوم علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے یونٹی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کا آغاز کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کچھ ویڈیوز دیکھیں۔ اس وقت رات کے تقریباً 2:45 بجے کا ٹائم ہے۔ میں محمود آباد اعظم بستی میں کھڑا ہوں۔ یہاں پر کون سی تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے؟ 17 تاریخ کی شام کو یہ واقعہ ہوا ہے اس بچے کے ساتھ۔ اس کو زبردستی موٹر سائیکل پہ بٹھایا گیا ہے، جو اس کے بقول وہ 3 موٹر سائیکل تھے اور 6 لوگ تھے اس کے اوپر، اور اس سے زبردستی اس کے کپڑے اتار کے اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ جب اس سے پتہ کیا گیا کہ وہ کون لوگ تھے، وہ پکڑے گئے ہیں، وہ لوگ وہ ملزم پکڑے گئے ہیں، تو یہ بقول اس کے یہ کہتا ہے کہ مجھے جب پکڑا گیا اور میرے کپڑے اتار کے میری ویڈیو بنائی گئی اور میرے ساتھ وہ بدفعلی کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب میں نے نہیں کرنے دی تو انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا، اور وعدہ یہ تھا کہ بھائی آپ کتنے سال کی بچی کو لے کے آئیں؟ 10 سے 12 سال کی بچی کرسچن ہے۔ وہ کون ہو؟ کرسچن۔ ہاں، تو جب آپ نہیں لے کے گئے تو دوبارہ آپ کو لے کے گئے تو پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے بٹانے کی کوشش کی، انہوں نے میرے کو یہی بولا تھا تو اگر بچی نہ لائے تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اور کل جب اس کو بچایا گیا، کچھ لوگوں نے بچایا اور عین موقع پر پولیس موبائل وہاں پر آئی اور پولیس موبائل اس کو پکڑ کے لے کے گئے۔ ان دونوں ملزموں کو جن کے پاس گنیں تھی وہ بھاگ گئے ہیں، اور ہم تقریباً 11:30 سے لے کے 2:30 کے درمیان محمود آباد پولیس اسٹیشن میں ہیں، لیکن اس وقت تک وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ باقاعدہ پولیس نے ان پارٹی کو بلوایا، دوسرے لوگوں کو، تاکہ تصادم کی صورتحال پیدا ہو۔ اور جب یہ دیکھا گیا ہماری FIR نہیں کاٹی گئی، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں یا اس کو یوز کیا جائے۔ میں تمام بہن بھائیوں سے کہتا ہوں، یہاں پہ بات کرسچن کی نہیں ہے یا کسی اور کمیونٹی کی نہیں ہے، یہاں پہ بات ہم زیادتی کی کر رہے ہیں کہ جو زیادتی اس ملک میں ہوتی ہے، چاہے وہ کسی مسلم کے ساتھ ہو یا ہندو کے ساتھ ہو یا کرسچن کے ساتھ ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا آپ سب سے، میں تمام بہنوں بھائیوں سے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذاہب سے، وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں، کیونکہ اس ملک میں آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے 4 سال کی بچیوں کے ساتھ، 3 سال کی بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ لیکن برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اس لڑکے کو کڈنیپ کیا اور اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ لڑکا کسی طرح اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کو کہا گیا کہ تجھے تب تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک کہ تو کم سن نابالغ کرسچن لڑکیاں نہ لے کے آئے۔ وہ تو ایک کرسچن تھا، اس طرح کی حرکت نہ کر سکا، لیکن اب جب یہ چیز سامنے آ گئی ہے تو میرے خیال سے اب میڈیا بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آرزو نے اور ہما نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور کرسچن لڑکیاں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتی ہیں۔ ہم تو یہ کہتے رہے ہیں کہ نابالغ لڑکی اپنی مرضی سے جب شناختی کارڈ نہیں بنا سکتی، اپنی مرضی سے ڈرائیونگ لائسنس اپلائی نہیں کر سکتی، تو شادی جیسا بڑا فیصلہ اور مذہب تبدیل کرنے جیسا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے، اور کیسے پاکستان کا قانون اس کو اجازت دے سکتا ہے؟ کرسچنز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کی بچیوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے اور ریپ کیا جاتا ہے، اور ریپ کرنے کے بعد اپنا یہ گھنونا جو گناہ ہے اس کو چھپانے کے لیے جبراً ان سے شادی کی جاتی ہے، اور ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تمہیں اور تمہارے ماں باپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس گھنونے کام کے اندر وہ مولوی بھی اتنا قصوروار ہے جو ان کا نکاح پڑتا ہے، اور اس کے بعد جس طرح پولیس ان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے اور کیس کو کیسے دبانے کی کوشش کرتی ہے، یہ سب تو آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب، کہاں ہے آپ کا انصاف؟ الیکشن سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا جہاں پر اقلیتوں کو برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ کہاں ہے وہ مدینہ کی ریاست؟ آپ نے تو سچ میں ہمیں 1400 سال پیچھے دھکیل دیا۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں مخاطب ہوں بھائی شکیل جرنلسٹ کے ساتھ، شکیل مقبول جرنلسٹ کے ساتھ کچھ بات ان سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے اخباری نمائندے ہیں۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میری مسز یہ بات کریں۔ بھائی اسلام، جب جی آتے ہیں تو کافی پریشان ہوتے ہیں، اور میں پوچھتی ہوں کہ کیا وجہ؟ جی،
सर परेशानी का मामला ये है कि मेरा बेटा है आइजिक, मेरी बेटी है परिया, और सर मुझे अक्सर बाज़ारों में गलियों में रोक कर ये धमकाया जा रहा है कि आप अंजील की मुनादी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऐसा करें, यहाँ पर अल्लाह का नाम लिखे, अल्लाह की कुरान की आयत लिखे, क्योंकि शकील मकबूल साहब हमारे मुल्क की हालात ऐसे अच्छे नहीं है जो हम ये बातों को दबाए रखें। काफ़ी दिनों से ये मेरे साथ सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये हफ्ते वाले दिन ज़्यादा हुआ है, तो मैं किसी थाने में जाके रपट भी लिखवाना चाहता हूँ, और आप तक ये बात इसलिए मैं पहुँचा रहा हूँ कि कल को मेरे साथ कैसी प्रॉब्लम होती है तो आप इस बात के गवाह रहें। मैं कोशिश करूँगा कि जितने और हमारे जर्नलिस्ट लोग हैं उनके साथ भी मैं ये बात को शेयर कर सकूँ। देखिए सर, मैं गरीब बंदा हूँ, ना मैं किसी के साथ लड़ सकता हूँ, और ना मेरे खुदावंद यीशु ने ये कहा है कि मैं किसी के साथ लड़ूं, लेकिन ये छोटी सी मैं खिदमत कर रहा हूँ। इस छोटी सी खिदमत में भी मुझे प्रॉब्लम दी जा रही है। इसी तरह का मुझे डराया जा रहा है कि मैं अक्सर डरता हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और गरीब बंदा हूँ। मैं किसी के साथ ये ऐसा सलूक भी नहीं कर रहा और ना किसी को बुरा कह रहा हूँ। प्लीज़ आपकी मेहरबानी है शकील मकबूल साहब, ये मेरी बात को सुना जाए और अपने रिकॉर्ड में रखा जाए। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इस भाई ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे किसी मुस्लिम की दिल आज़ारी हो, जिससे किसी मुस्लिम को तकलीफ़ हो। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि हमारे रिलीजन में हमें क्या सिखाया जाता है। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेशक रिक्शा चलाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उस ज़िंदगी में भी मसीह की तालीम को अव्वल दर्जा दिया और लोगों तक मसीह का पैगाम पहुंचाने की कोशिश की अपने अमाल के ज़रिया से। जैसा कि मसीह ने हमें सिखाया है कि मांगने वालों को दिया करो और वापस तलब ना करो, जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करो। यही मैसेज भाई ने अपने काम के जरिए लोगों को दिया। उन्होंने ये बताया कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो बगैर कुछ बताए चुप करके उनकी गाड़ी में, उनके रिक्शे में बैठे और वो जहां वो चाहेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ कर आएंगे। इस मैसेज से किसी को कोई भी शिकायत होनी तो नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही एक अच्छा और नेक काम है, ना सिर्फ क्रिश्चियन होने के नाते बल्कि एक इंसान होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते ये एक बहुत ही अच्छा अमल है। लेकिन इस अमल के बाद किसी ने उनको दाद तो दी नहीं, किसी ने उनकी तारीफ तो की नहीं। जब यही काम कोई मुसलमान करे तो मीडिया पर हेडलाइंस चलती हैं, उनके इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन जब कोई क्रिश्चियन करे तो उसको अवार्ड देने के या उसको शाबाशी देने के बजाय उसको उल्टा धमकियां दी जाती हैं। क्या इतनी नफरत आ गई है क्रिश्चियंस के लिए? मैं इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि खान साहब, क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, इनको आप निकाल नहीं सकते। हम किसी और मुल्क से यहाँ आकर नहीं बसे। हमारी तारीख पाकिस्तान में इस्लाम से पहले की है। आप लाख कोशिशें कर लें और तुगरुल दिखा लें, जितने मर्जी आप लॉज ले आए, आप हमें मार तो सकते हैं, निकाल नहीं सकते। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि क्रिश्चियनिटी में ये जरूर कहा है कि किसी को कत्ल ना करें, ये जरूर कहा है कि किसी की दिल आजारी ना करें, ये जरूर कहा है कि हम किसी पर हमला ना करें, लेकिन अपना सेल्फ डिफेंस करना हमारे कलाम के मुताबिक गुनाह नहीं है। अगर आप हमें टारगेट करेंगे तो हम सेल्फ डिफेंस करेंगे। आप पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी करवाना चाहते हैं, मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरवीन करें। मीडिया तो इन चीजों को हाईलाइट नहीं करेगा, लेकिन खुदारा इमरान खान साहब, ये जो नफरतें आपने फैला दी हैं इनके फल हम भुगत रहे हैं। प्लीज इसको खत्म करें। हम प्यार बांटते हैं और प्यार ही बांटेंगे, लेकिन जब प्यार बांट रहे हैं तो खुदारा आपको हम पे फख्र होना चाहिए, बजाय इसके कि आप लोग हमें दुत्कारें, हमें कत्ल करने की धमकियां दें। ये कोई तौहीने रसालत में तो नहीं आती। भाई तो किसी को प्रीच भी नहीं कर रहे, किसी को ये भी नहीं कह रहे कि इस्लाम को छोड़ दें, इस्लाम गलत है, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करें। ऐसी दावत भी नहीं उन्होंने दी, जबकि दावत देना भी कोई गुनाह नहीं। लेकिन जब उन्होंने दावत भी नहीं दी तो क्या वो अपने मजहब के ऊपर अमल भी नहीं कर सकते? एक तरफ हमारी बेटियों को रेप किया जाता है, उनको किडनैप किया जाता है, हमारे नौजवानों को दिन दहाड़े कत्ल किया जाता है, दूसरी तरफ हमें अपने मजहब के मुताबिक चलने भी नहीं दिया
किया जा रहा। मैं अपनी कौम से दरख्वास्त करूंगा कि जागें और मुतफिक हों, अपनी सोसाइटीज को, अपनी फैमिलीज को डिफेंड करना सीखें और एक हो जाएं। इमरान खान साहब इस वीडियो को देखें, ये ना हो कल को कोई इन पर तौहीन रसालत लगा के इनको भी कत्ल कर दे। खुदारा नोटिस लें। मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि आपने इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ एक्ट, तौहीन रसालत एक्ट, बहुत सारे कानून बना दिए हैं, खुदारा कोई माइनॉरिटी तहफ़्फ़ुज़ एक्ट भी बना दें। क्या हमारे मजहब की तौहीन आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती? आपने तो खुले लाइसेंस दे दिए हैं लोगों को हमारे मजहब की तौहीन करने के। जितना आपको इस्लाम अजीज है, हमें भी अपना मजहब उतना ही अजीज है। हम भी अपने मजहब के लिए मरने तक के लिए तैयार हैं। आपका तौहीन रसालत सिर्फ क्रिश्चियनों पर ही लगता है या सिर्फ मासूम और जो कमजोर होते हैं उन पर ही लगता है? कोई भी इंसान किसी को भी तौहीन रसालत का केस डालकर उसको कत्ल कर सकता है। बाद में घंटों के अंदर वो बंदा कौम का हीरो बन जाता है। इमरान खान साहब, कभी सोचा है आपने कि कौम इस हद तक कैसे गिर गई है? ये सब आपका किया धरा है। जो नफरतें आपने फैलाई हैं, जिन एंकर्स को आपने खुली छूट दी है कि वो मीडिया पर आकर जो मर्जी बोले। मैं चाहूंगा ये आप वीडियो देखें खादिम रिजवी की। ਉਹ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਰ ਦੇ ਸੂਰ ਹਨ ਚੱਲ ਚਲਿਏ अभी आपने जो वीडियो देखी जिसमें खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो अजान की गुस्ताखी कर रहे हैं और कह रहे हैं वहाबियों की अजान है। अजान तो वहाबियों की है, बरेलवियों की भी होती है, अहले हदीस की भी होती है, लेकिन अजान जो है वो सेम है सबकी। और अजान के अंदर कलमा पढ़ा जाता है और कलमा जो है वो आपके रसूल का है। आप बरेलवियों की इज्जत करें, वहाबियों की इज्जत करें ना करें वो एक अलग इशू है, लेकिन अजान आपके भी रसूल की है और ये साफ साफ तौहीन रसालत थी। लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं उठा। इसके ऊपर ना तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया, ना कोई आशिक रसूल उठा कि भाई क्यों आप एक आशिक रसूल हैं और आप इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं। इससे तो हमें यह साबित होता है कि आशिक रसूल को अल्लाह की और रसूल की गुस्ताखी करने का पूरा पूरा हक है, क्योंकि वो आशिक रसूल है। जब आशिक रसूल खुद ही नहीं इज्जत करते, एहतराम करते, लेकिन वो दूसरों को कत्ल करते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। जो बड़े बड़े मौलवी हैं उनको इजाजत है। खादिम हुसैन रिजवी साहब अब तो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, लेकिन वो जिंदा भी होते तब भी मैं 100% श्योर हूँ कि ना कोई बंदा आवाज उठाता और ना गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन लेना था, क्योंकि कत्ल सिर्फ मासूमों को और गैर मुसलमानों को किया जाता है। गैर मुसलमानों से डंडे के जोर पे, तलवार के जोर पे इज्जत करवाई जाती है, लेकिन मुसलमानों को खुली आजादी है। खास तौर पे आशिक रसूल को खुली आजादी है कि वो जैसे मर्जी अपने प्रॉफिट की, जिनको वो मानते हैं, अपने खुदा को जिसको वो मानते हैं, जिनके लिए वो जान ले सकते हैं, उनकी खुद इज्जत करते नहीं। हमारे तो वो नबी भी नहीं है, लेकिन हमने तो कभी ऐसी हरकत नहीं की। अजान होती है हम चुप हो जाते हैं, एहतराम में हम नहीं बात करते, कोई गुस्ताखी नहीं करते। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, ये कानून सिर्फ क्रिश्चियंस को और हिंदुओं को और अहमदियों को टारगेट करने के लिए बनाए हैं, कत्ल करने के लिए बनाए हैं। सरेआम कोई टीवी पर आकर इतनी बड़ी बात कर जाता है और मीडिया खामोश बैठा हुआ है। क्यों? उनके पीछे फॉलोअर हैं, जो ब्लाइंड फॉलोअर हैं, जो बगैर सोचे समझे कत्ल कर देते हैं। क्रिश्चियन चूंकि आवाज नहीं उठाता, क्रिश्चियन चूंकि हथियार नहीं उठाता, बदला नहीं लेता, इसलिए उसको जब मर्जी, जहां मर्जी, जैसे मर्जी इल्जाम लगाकर कत्ल कर दो। साबित करने की तो दूर की बात है, माफी मांगने की तो दूर की बात है, कोई पूछता तक नहीं है कि तुमने ये तौहीन की भी है या नहीं। ना कोई गवाह लाया जाता है, ना कोई वीडियो क्लिप लाया जाता है, लेकिन कत्ल कर दिया जाता है। गवर्नमेंट को इन चीजों पे सोचना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। अगर इंसाफ देना शुरू करना है, अगर तौहीन रसालत का आपने ये लॉ लगाना है तो पहले मुसलमानों पर लगाएं और सबसे पहले मौलवियों पे लगाएं। इन मौलवियों को पकड़ें, इनसे शुरू करें। जब ये खुद इज्जत नहीं करते तो दूसरों से कैसे तवक्को करते हैं। इनको पकड़ें, फिर आम मुसलमान पे आए, अपने किरदार को इतना बुलंद करें कि लोग डर से आपकी इज्जत ना करें, बल्कि आपके इखलाक और किरदार से लोग कहें कि हाँ ये लोग अच्छे हैं, इनका मजहब अच्छा है। इस तरह के कानून लाने से आप लोगों को डरा सकते हैं, रोक नहीं सकते। पहले तो तौहीन रसालत, अब इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ एक्ट हो गया, अब कोई इस्लाम को कानूनी तौर पर इस्लाम को छोड़ नहीं सकता। ये किस तरह के कानून है? क्या इस्लाम इतना कमजोर हो गया? कभी कहीं किसी और रिलीजन में, किसी और कंट्री में ऐसे रूल्स
देखे हैं? क्रिश्चियनिटी में खुली आजादी है। जिसको हक सच नहीं पसंद, जिसको असल हकीकत सच्चा रास्ता नहीं पसंद, बेशक छोड़े, आखिरत उसके लिए इंतजार कर रही है। लेकिन फिर भी आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है। कहीं क्रिश्चियनिटी के नाम पे जबरन मजहबी तब्दीली नहीं लाई जाती, किसी को जबरन नहीं कहा जाता कि क्रिश्चियन हो जाओ, लेकिन फिर भी आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है। कहीं 4-4 शादियां क्रिश्चियनिटी में नहीं की जाती, फिर भी आज भी सबसे बड़ा रिलीजन है। कहीं किसी को ये नहीं कहा जाता कि इनको जबरन जंजीरों में बांधकर क्रिश्चियनिटी में लेके आओ, लेकिन फिर भी आज भी सबसे बड़ा रिलीजन है। और मैं ये बात हिस्ट्री की बेस पर नहीं, स्क्रिप्चर्स की बेस पे कर रहा हूँ। अगर किसी ने कमेंट करना है कि पास्ट में ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो वो बातें नहीं चलेंगी। पास्ट में इस्लामिक वर्ल्ड में भी बहुत कुछ हो चुका है। बात करनी है स्क्रिप्चर्स में से करें। कोई आयत लेके आए कि यहाँ लिखा हुआ है जीसस ने ये कहा था, हम आपको हदीसें और आयतें देंगे, यहाँ पे ये लिखा है। हम किसी इंसान के अमल के ऊपर ये बातें नहीं कर रहे, ये आपके दीन का हिस्सा है। वेस्ट में, दुनिया भर में मैंने किसी रिलीजन में ये कानून नहीं देखे। ये कमजोरी की निशानी होती है कि आप लोगों के लोग खुशी से उस मजहब में नहीं रहना चाहते, इसलिए आपको जबरदस्ती रखना पड़ रहा है। कम सिन लड़कियों के साथ शादियां करके, उनका रेप करके, उनको जबरदस्ती धमकियां दे के, कत्ल की धमकियां दे के इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। ये सोचने की बातें हैं। अगर किसी भाई को गुस्सा चढ़ रहा है तो इन चीजों को सर्च करें कि ये चीजें क्या हकीकत है, क्या इस्लाम इन चीजों की इजाजत देता है। अगर आपको नहीं मिलती तो हम आपको हदीसें दे देंगे, लेकिन इन चीजों को सोचें। ये तौहीन में नहीं आती, ये आपके स्क्रिप्चर्स का हिस्सा है। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट लेवल पर जबरन मजहबी तब्दीली की इजाजत दी गई है। लोगों को जबरदस्ती इस्लाम के अंदर रखा जा रहा है। ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो लाइसेंस देते हैं जिसको मर्जी, जिसका मर्जी दिल करे उसको कत्ल कर दिया जाए। और आज ये नौबत आ गई है कि आशिक़े रसूल ही आशिक़े रसूल का कत्ल कर रहे हैं अपनी जाती दुश्मनियों की वजह से। सोचें, अगर मुसलमान एक आशिक़े रसूल का कत्ल कर सकते हैं गलत इल्जाम लगा के, तो गैर कौमों के साथ वो क्या करते होंगे? ये इंसाफ का तकाजा है। खान साहब, ये थी आपकी मदीना की रियासत। खैर, आपने तो पढ़ी नहीं है मदीना की रियासत, पढ़ी होती तो आप ये बातें ही ना करते। लेकिन इन चीजों को सोचें। और मैं सारे मुसलमानों से ये दरख्वास्त करूंगा कि मजहब के ऊपर बात करने से पहले मजहब का मुतालिया करें, और दूसरों के मजहब के ऊपर भी बात करने से पहले मजहब का मुतालिया करें और रेफरेंस से बात किया करें, हवाई फायरिंग ना किया करें। मुसलमान खुद चाहे जितनी मर्जी तौहीन रसालत करें, मजहब तो आपका है, फर्ज तो आप पर है। अकीदत करना आपका फर्ज है अपने मजहब की। आप खुद तो अकीदत करते नहीं, दूसरों से मार मार के कत्ल करवा कर अकीदत करवाना चाहते हैं। दूसरी कंट्रीज से आप तवक्को करते हैं, जब आपके अपने मजहबी लीडर्स जो हैं आपके मजहब की अकीदत नहीं करते। हम क्रिश्चियंस जो हैं आपके मजहब की अकीदत सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये जायज नहीं, हमें ये सिखाया नहीं गया कि किसी मजहब की तौहीन की जाए। बेशक हम इस्लाम पर ईमान नहीं रखते, बेशक हम हिंदुइज्म पर या किसी और मजहब पर ईमान नहीं रखते। हमारा मजहब मसीहत है और हम यसू अल मसीह कादर मुतलिक कायनात के बादशाह के मानने वाले हैं और इस पर हमें फख्र है। लेकिन हम सिर्फ आपकी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि हम सब मजहब की इज्जत करते हैं और उनको बराबर समझते हैं। ये कानून नहीं भी होंगे तब भी हम आपकी मजहब की इज्जत करेंगे क्योंकि वो आपका मजहब है, आपके दिल को अजीज है और हम किसी इंसान की दिल आजारी नहीं करते। ये मुनाफकत होती है कि खुद तो आप किसी के मजहब की इज्जत ना करें और दूसरों से कहें कि हमारे मजहब की इज्जत करें और फिर डंडे के जोर पे करें। इमरान खान साहब सोचें, ये चीजें सोचने वाली हैं। मजहब जो है वो डंडे के जोर पे फैलाए नहीं जाते। मजहब वो होते हैं जिनको दिल से माना जाता है, दिल से इज्जत की जाती है। ये वो कायदे आजम का पाकिस्तान है जहाँ सबको मजहबी आजादी थी। ये ख्वाब था कायदे आजम का, आपने इसको क्या बना दिया है। क्रिश्चियंस के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मैं अपनी कौम से कहूँगा जागें, ये वक्त बहुत संगीन आ गया है और अपने तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा खुद उठाएं। ये हुकूमत हमें कुछ देने वाली नहीं है, ये हुकूमत उल्टा नफरतें फैला रही है। अब हमें हुकूमत से कोई उम्मीद भी नहीं। इमरान खान साहब आके कह देते हैं पाकिस्तान में तो किसी भी कानून की पासदारी नहीं होती, पाकिस्तान में तो कहीं पर भी गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। तो खान साहब ये कोई फख्र की बात नहीं, ये शर्म की बात है। अपने मुल्क में जहां आप कानून नाफिज कर सकते हैं वहां तो आपसे किया नहीं जा रहा। थोड़ी होश के नाखून लें, पाकिस्तान को नई जंगों में ना धकेलें। वो मुल्क बहुत कमजोर हो जाता है जहां के लोग एक दूसरे से नफरतें करने लग पड़े। इस मुल्क की तरक्की में क्रिश्चियनों का बहुत बड़ा हाथ है। आज तक हमने किसी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाया। आज तक हमने मजहबी मामलात
हालात में कभी किसी मुसलमान की दिल आजारी नहीं की। आज तक हमने कभी मुसलमान के साथ कोई जंग मजहब के नाम पर नहीं की। हम शराफत से रह रहे हैं, हमें शराफत से रहने दें, वरना जब किसी के बच्चों को कत्ल किया जाता है तो एक माँ भी किसी शेरनी से कम नहीं होती। अपने बच्चों की हिफाजत सब करना जानते हैं और कोई भी मजहब अपने मजहब की, अपने घराने की हिफाजत करने से मना नहीं करता। ये क्रिश्चियनिटी में भी गुनाह नहीं है। बदला लेना मना किया गया है, हम बदला नहीं लेंगे। लेकिन अगर हमारे भाइयों पर, हमारी कॉलोनीज पर, हमारे चर्चिस पर अटैक किया तो हम डिफेंड जरूर करेंगे। इमरान खान साहब, अगर आपको इस्लाम हर दिल अजीज है तो हमारे लिए भी क्रिश्चियनिटी हमारी जान से बढ़कर है। हमारे लिए भी यसू अल मसीह हमारी जान से बढ़कर हैं। और क्रिश्चियंस एक कौम है, इस कौम के एक शख्स को भी तकलीफ होगी तो पूरी कौम उसके पीछे खड़ी होगी। मैं चाहूंगा अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो इस भाई को फौरन से पहले तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मेरे क्रिश्चियंस बहन भाइयों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो इमरान खान साहब तक और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक पहुंचे, ताकि उन्हें पता चले कि क्रिश्चियंस के साथ क्या जुल्म हो रहा है। हम अमन पसंद लोग हैं और अमन से रहना चाहते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए और हम आज भी देना चाहते हैं। लेकिन हमें ये ना एहसास दिलाएं कि ये मुल्क हमारा नहीं है। ये मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा और ये मुल्क हमें हर दिल अजीज है। और मैं अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि अब जो वक्त आ गया है इसमें डरे मत। बाइबल की बातें पूरी हो रही हैं कि आखिरी वक्त में लोग तुम्हें मेरे नाम के सबब से लानतान करेंगे, तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, तुम्हें कत्ल करेंगे। तो घबराना नहीं, तुम्हारा अजर बहुत बड़ा है। हमें अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार करना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा कलाम सुनाना है, लोगों को बताना है कि क्रिश्चियनिटी क्या है। इस काम से हमें कोई नहीं रोक सकता, ये हम पर फर्ज है और हम करते रहेंगे। आज का मैसेज थोड़ा सा गर्म है, अगर किसी की दिल आजारी हुई तो मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन हालात पाकिस्तान में कुछ दिन ब दिन संगीन और खतरनाक होते जा रहे हैं। क्रिश्चियंस का सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप इस मैसेज से मुत्फिक हैं तो इस मैसेज को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई क्रिश्चियन लॉजिशियन को दुआओं में जरूर याद रखें। थैंक यू।